پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ ناظرین، اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو میں یہ خبر دے چکا تھا کہ پاکستان کے جو آئندہ آنے والی سیاست ہے اس میں 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اگلے 10 دنوں میں یہ سیاسی منظرنامہ بالکل بدل جائے گا۔ کسی کو کچھ نہیں پتا، اس وقت تمام کنفیوزڈ ہیں، سٹیک ہولڈرز بڑے اہم فیصلے کر رہے ہیں، لیکن اتنی جلدی ہواؤں کا رخ بدل جائے گا یہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ آج جو خبریں لے کر جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ نے اس کو مس نہیں کرنا، آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی وزیر اعظم ہاؤس میں ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ وہاں پر کچھ ہنگامی طور پر اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا طے پایا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور کنٹرول خود انہوں نے اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا ہے، جڑواں شہروں میں تھرتھلی ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، یہ مکمل ڈیٹیلز جناب میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ اور عمران خان کے حوالے سے کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور ایک خط کی گونج ہے شہر اقتدار میں، وہ خط کس کو لکھا گیا ہے اور اس خط میں عمران خان کے حوالے سے کیا ذکر ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھنی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے، اور یہ سرپرائز اب کی بار پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے نواز شریف صاحب کو، اور جاتی عمران نے اس صفحے ماتم بچ چکا ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، اس وقت عمران خان صاحب کے سائفر کا معاملہ ہے کہ انہوں نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، تو پھر ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو کاروائی ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے، اوپن ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا، اور انصاف کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ کیوں پورے نہیں کیے جا رہے، یہ ان کے وکلا کی جانب سے کچھ سوالات اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت کے اندر رکھے گئے، اور سائفر کا جو سارا معاملہ تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکن بینچ نے اڑا کر رکھ دیا۔ آج جناب ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے، جیو نیوز اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر کی جانب سے وزارت خارجہ کو بھیجے گئے 7 مارچ 2022 کے سائفر کو کبھی ڈی کلاسیفائڈ نہیں کیا گیا تھا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جب ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تھا، عمران خان صاحب نے کابینہ میں بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جناب یہ میں سائفر ڈی کلاسیفائی کرنے جا رہا ہوں، چیف جسٹس کو سائفر لکھا گیا، اور جو ہمارے سپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کے چیمبر میں سائفر پڑا رہا، اور جناب مختلف شخصیات کو سائفر جو ہے اس کی کاپی بھیجی گئی، اور اگر سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا تو یہ سائفر 7 مارچ 2022 والے اس خبر کی آج ذکر یہاں پر کیوں کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور اس کے ماہرین جو قانونی ٹیم ہے ان کا وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا، تاہم سائفر کی چھان بین اور کابینہ اجلاس کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کرنے والے ایف آئی اے کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا۔ اگر سائفر کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب نے وہ سائفر قوم کے سامنے رکھ دیا تو اٹ مینس کہ پھر جناب ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگ جائے گا اور عمر قید سزائے موت کی جانب کام پڑے گا۔ اگر سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا اور عمران خان نے وہ کاپی جو عدالت کے اندر جو انہوں نے جناب 27 مارچ کے جلسے پر لہرائی تھی اور وہ کاپی تھی، وہ اصل سائفر نہیں تھا ان کے بقول، اور اگر وہ اصل سائفر نہیں ہوا تو پھر جناب وہاں پر ان کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا سائفر کے سارے معاملے میں۔ اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں کچھ اجلاسوں میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے متعلق باتیں ہوئی تھیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کابینہ کے یہ اجلاس اس وقت ہوئے جب عمران خان عوامی ریلی میں سائفر کی کاپی لہرا کر دکھا چکے تھے، اور معلوم ہوا کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی سختی سے مخالفت کی تھی، اور یہ معاملہ وزارت قانون میں بھیجا گیا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزارت قانون نے بھی اس خفیہ دستاویزات کو منظر عام پر لانے کی مخالفت کی تھی۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیا گیا کہ وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور وزارت قانون نے عمران خان کے اس عمل کی جو ہے مخالفت کی اور سائفر کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا، اور پھر یہ بات بھی ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ سائفر تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، دھمکی نہیں آئی تھی جب سائفر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو یہاں پر کس سائفر کی بات ہو رہی ہے جو وزارت خارجہ میں تھا اور ڈی کلاسیفائی اس کو نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم بعد میں کابینہ نے سائفر کی نقل صرف صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو دینے کی منظوری دی، اور سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی تجویز پر کابینہ کا پہلا اجلاس 30 مارچ 2022 کو یعنی کہ عمران خان کی جانب سے سائفر کی کاپی لہرا کر دکھانے کے 3 دن بعد ہوا، جس میں ڈی کلاسیفیکیشن کی مخالفت کی گئی، اور 1 دن بعد عمران خان کی کابینہ نے پھر ان کیمرہ اجلاس میں اس تجویز پر بات کی، لیکن صرف 4 اعلیٰ ترین عہدیداروں کو سائفر کی کاپی بھیجنے کی منظوری دی۔ تو تاہم پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیگل ٹیم کا اس
इसरार है कि पूरी काबीना ने साइफर को डिक्लासिफाई किया था और इसी वजह से साइफर में मौजूद मालूमात को खुफिया नहीं कहा जा सकता और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इन कैमरा ट्रायल का जवाब नहीं बनता। ये केस जाली और मनगढ़ंत है। साइफर केस में सीनियर वकील और इस्तगासा टीम के सरबराह शाह खावर ने राब्ता करने पर बताया कि साइफर कभी डिक्लासिफाई किया गया और न काबीना ने ऐसा कोई फैसला किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान पर से राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि फॉरेन ऑफिस इस मामले पर तबसरा नहीं करेगा क्योंकि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने अपने बयान में कहा था कि इस्लामाबाद के जलसे से कबल एक मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा था कि वो साइफर को अवाम के सामने एक मखसूस अंदाज से पेश करना चाहते हैं ताकि तासुर जा सके कि उनके खिलाफ मुकामी पार्टनर के साथ मिलकर साजिश की गई है और वो इस बात को मजलूम यानी कि विक्टिम कार्ड बनकर पेश करेंगे। अब ये बात हुई है और अब ये मामला अगर अदालत के अंदर चला गया कि इमरान खान साहब ने तो साइफर डिक्लासिफाई सिर्फ 4 आला तरीन ओहदेदारों को भेजने के लिए किया था तो अवाम को वो दिखा नहीं सकते थे। यहां पर एक मामला हो सकता है और दूसरा ये कि साइफर 30 मार्च को डिक्लासिफाई हुआ और 27 मार्च को इमरान खान साहब ने वो जो जलसे के अंदर कॉपी लहराई थी वो जनाब उन्होंने डिक्लासिफाई होने से पहले लहरा दी थी। ये 2 नुक्ते जो है एफआई की टीम से जो है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर सवाल ये बनता है कि इमरान खान साहब ने जो साइफर की कॉपी लहराई थी वो असल साइफर नहीं था, वो सिर्फ 2-3 लाइनें थी जो इमरान खान साहब ने वहां लहराकर वहां पर दिखा दी थी और शायद असल साइफर इमरान खान साहब ने खुद भी नहीं पढ़ा और उसकी सिर्फ जो ट्रांसलेशन है वो इमरान खान साहब तक जो है पहुंचाई गई थी। ये बातें जो उनके बकौल अदालत के अंदर बताई गई हैं। अब ये साइफर का मामला एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर चुका है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर इस वक्त हलचल है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के सियासतदान, थरथली जनाब शहर इक़्तिदार में मची हुई है और जुड़वा शहरों में नजर आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आज सामने आया है और जाती उम्रा में सरप्राइज के बाद सफ़े मातम बच चुका है। एक चीज तो मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में जो गंद मच चुका है, जो खिचड़ी पक चुकी है, जो जातियात पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का सियासतदानों से यकीन उठ चुका है जो बज़ाहिरन चीज नजर आ रही है। और यहां पर मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट को अहम तरीन किरदार अदा करना चाहिए और आगे बढ़कर खेलना चाहिए। यहां पर एक भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आयद होती है कि वो आगे बढ़कर खेलें और सियासतदानों को बैकअप होना चाहिए, वो पीछे होएं और इस्टेब्लिशमेंट को आगे आने दिया जाए और उनको अब काम करने दिया जाए। ये एक अहम चीज है। लेकिन जनाब मैं आपको यहाँ पर जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने आज एक अहम सरप्राइज दिया है और ये इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके जो रहनुमा असद कैसर साहब वो गिरफ्तार हुए। आज वो सहाफियों के सामने पेश हुए, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। उन्होंने कहा कि इस माहौल में अगर इलेक्शन हो गए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा और यही बात पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स भी देख रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा, फिर दंगे फसाद फितना यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जाएगी। तो इससे पहले आप जो है वो दंगे फसाद फैलाएं, खूनी खेल करें, आप जो इलेक्शन हैं उसको मुलतवी कर दें। और असद कैसर की जो ये स्टेटमेंट थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन मांग रही है लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी चाहिए। तो आपको मैं एक खबर देना चाहता हूं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ साहब साहिबर साकिर साहब ने खबर ब्रेक की है कि वो कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात कर रहे थे और उस मुलाकात में उन्होंने कहा, अनवरुल हक काकड़ साहब को किसी ने कहा कि जनाब आपकी बाप पार्टी को तो किसी ने तोड़ के रख दिया है और नवाज शरीफ साहब जो आपकी बाप पार्टी ले उड़े हैं तो अब आप क्या करेंगे। तो अनवरुल हक काकड़ साहब ने जो ये बात की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कुछ पता नहीं है कि उसके साथ आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, उसको अभी तक कुछ इल्म नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है। और अगर कुछ समझता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, आप सुकून से काम करें और इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। बकौल साबिर शाकिर साहब के उन्होंने दावा किया है और ये एक बहुत बड़ा दावा है कि नवाज शरीफ के साथ आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खेल होने जा सकता है। और जो जराए ने एक और मुझे खबर दी है चौधरी निसार साहब के हवाले से कि चौधरी निसार ने बहुत आम तरीन वक्तें जो है गिरा दी हैं, इसमें ज्यादातर वक्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हैं। और चौधरी निसार ने अपनी एक करीबी शख्सियत को यह बताया है कि वो बहुत जल्द सरप्राइज देने जा रहे हैं और सिर्फ इंतजार है इलेक्शन शेड्यूल का कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो सामने आ जाए और उसका ऐलान हो जाए और एक वो बहुत बड़ा सियासी धमाका करेंगे जिसके बाद जनाब लोगों की नींदें हराम भी हो सकती हैं और बहुत से लोगों के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब भी चकनाचूर हो जाएंगे। और चौधरी निसार साहब का ये दावा और फिर अनवरुल हक काकड़ साहब का जो बयान, और आप इसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें। चौधरी निसार भी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, अनवरुल हक काकड़ साहब भी जनाब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और इन दोनों का बयान ये वाज़ेह कर रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, कि अब बहुत बड़े जो ख्वाब जो बनाए गए थे, जो सजाए गए थे, जो सब्ज़ बाग देखे गए थे, अब वो सब्ज़ बाग जो हैं वो जनाब बुसने जा रहे हैं और वहां पर कटाई होना शुरू हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। और ये सूरत हाल आपको आइंदा आने वाले दिनों में नजर भी आएगी कि इस वक्त एक बहुत बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जनाब दिया गया है। अब जनाब आर्मी चीफ साहब जो है वो अगर अचानक से
वज़ीर-ए-आज़म हाउस चले जाएं और वहां पर एक अहम तरीन मुलाकात हो जाए। और आज भी GHQ में एक मुलाकात हुई, वो मुलाकात आर्मी चीफ जनाब आसिम मलिक साहब की और इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला की है। और सऊदी अरब की यहाँ पर आना, मुलाकात होना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जेस्चर था। फिर अमेरिकी सफीर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, उनकी मुलाकातें हुई, इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर भी मुलाकात हुई। और आज GHQ में मुलाकात, कल फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और आज का जो इलामिया एक और खबर का सामने आया है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर भी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जिसने जुर्मा शहरों में थरथल्ली मचा कर रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब ने भी अपने करीबी शख्सियात को बताया कि अब उनका मेन फोकस पाकिस्तान की इकॉनमी है। और जब ये मुलाकातें वो तवातुर से कर रहे हैं, आम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं, तो इट मीन्स के जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं, अब वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वो फ्रंट से पाकिस्तान को लीड करेंगे और वो इकॉनमी को ठीक करके ही दम लेंगे। ये फैसला जो है वो उनकी जानिब से जनाब कर लिया गया है। और अब हुआ क्या है, क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हलचल हुई है, वो आपके सामने मैं रख देता हूं। जनाब ये इजलास है, ये इजलास हुआ है SIFC का इजलास हुआ है। आर्मी चीफ की पाक फौज के ताउन की यकीन दहानी, यानी कि वहां पर अनवर हक काकड़ साहब ने इस इजलास को चेयर किया। आर्मी चीफ वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने पाक फौज के मुकम्मल तौर पर उनकी यकीन दहानी करवा दी है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप रगड़ा फेर के रखते हैं और अब झंडा उठा लिया गया है। और यहाँ पर जो इलेक्शंस का बात है कि इलेक्शंस भी मुलतवी जनाब हो सकते हैं इस सारे मामले के अंदर। एपेक्स कमेटी ने गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक मुतअद्दिद इक़दामात की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी है। और अब जनाब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक बहुत बड़े इक़दामात आसिम मलिक साहब जो हैं उनकी जानिब से जनाब उठाए जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने जनाब ब्रेक कर रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से जो फैसला हुआ है कि पाकिस्तान एक इंसाफ मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है कि उनको जलसे नहीं करने दिए जा रहे, उनको जनाब इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इसी हवाले से जनाब पाकिस्तान एक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से भी मुलाकातें की थी। और आज इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया है। और इस खत में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात की थी, तो लिहाजा ये खत जो है वो चारों सूबाई सेक्रेटरीज को और इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इलेक्शन कमीशन एक अहम तरीन इदारा है, वो किसी भी निगरान वज़ीर आज़म को या किसी भी निगरान वज़ीर आला को वो किसी भी वक्त हटा सकता है, ये उनके पास इख्तियार मौजूद है। और किसी भी निगरान वज़ीर आला को चूज करने के लिए भी ये जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। ताकतवर तरीन इदारा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इस वक्त बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। और उनका यह खत जो है वो अहमियत इख्तियार करता चला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर रियासत ने लेवल प्लेइंग फील्ड देने का जो है फैसला कर लिया है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। और जनरल आसिम मलिक साहब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करते नजर आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।